महासंघ की जो जिम्मेदारी है, आज जो हमने इससे पहले कि हमारे अतिथि हमको संबोधित करें, मैं चाहूंगा कि समाज की जो भावनाएं हैं और समाज की जो दिक्कतें हैं, समाज की जो उम्मीदें हैं, वो आज इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर समाज के सामने अपने जो हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, हमारे समाज के लोग, उनके सम्मुख रखी जाए। आपका सहमति है? ये क्योंकि संविधान दिवस है और संविधान का जो मालिक होता है, कस्टोडियन कौन होता है? भारत का प्रेसिडेंट होता है। तो ये लेटर किसके नाम है? भारत के प्रेसिडेंट के नाम है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। Respected Madam, regarding the memorandum on the problems of the scheduled caste scheduled tribe community of India, All India Federation of SC/ST or Nation is an apex forum of all social, religious, employees and officers organizations. Has organized 73 Constitution Day on 25th November 2022. At this occasion, a Savidhan Yatra has been organized at Constitution Club, Ravi Marg, New Delhi. Thousands and thousands followers of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar have participated in the Savidhan Yatra. Sir, आपने अभी संविधान यात्रा भी निकाली थी वहां से यहाँ तक. The Savidhan Yatra was converted in social gathering in Constitution Club, NXC Auditorium. Shri Vijay Sapla, Honorable Chairman, National Commission for SC, Government of India. Srimati Anju Bala, Honorable Member, National Commission for SC. Shri Subhash Pardi, Honorable Member, National Commission for SC, have participated in the celebration. At this occasion, the following resolutions unanimously passed in the interest of the SC/ST community of India. Resolutions number 1, मैं पढ़ रहा हूं, आप पास करते रहिए, मीडिया उन्हें कवर करता रहे. The atrocities upon the SC/ST community should be stopped and the culprits should be sent to jail as per the provisions of the amended SC/ST Atrocity Act. It is an established fact that the atrocities with the SC/ST community are being committed on large scale in India. In place of taking action against the culprits, criminal cases are being lodged against the innocent people of SC/ST community throughout the country. The culprits should be sent to jail, stern action should be taken against these culprits, and the justice should be restored with the victims of the SC/ST community, and the false cases lodged by various governments against the SC/ST community during Bharat Bandh, 2nd April 2018 and Tughlakabad temple incident should be withdrawn. बात क्लियर हो गई? जब 2018 में भारत बंद हुआ था, उस समय हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, हमारे बच्चे मरे थे, पूरे देश में आंदोलन हुआ था. वो केसेस सरकार ने कहा कि हम वापस कर रहे हैं. अर्जुन राम मेघवाल जी के घर पर जो मीटिंग हुई, जिसको रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने रिप्रेजेंट किया, थावरचंद गहलोत उस समय हमारे सामाजिक अधिकारिता मंत्री के रूप में उस मीटिंग में थे, हमारे महासंघ के करीब 100 रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में थे. उसमें ये उन्होंने कहा था कि भाई हम जो भी मुकदमे आपके बच्चों के खिलाफ उनको वापस कराएंगे. तो हमने आज कहा है उसी बात को संविधान दिवस के मौके पर कि ये जो मुकदमे हमारे बच्चों के खिलाफ, तुगलकाबाद जो हमारा सत गुरु रविदास जी का टेम्पल है, उसमें भी हमारे बच्चे अरेस्ट हुए, उनको भी जेल भेजा गया, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं. तो ये ऐसे मुकदमे जो क्रिमिनल केस नहीं है, ये मुकदमे वापस होने चाहिए. हाउस की सहमति है? सहमति है? Implementation of all provisions of Indian Constitution in favor of downtrodden community of the country. Government of India should ensure that the benefit of all provisions of Indian Constitution framed by Dr. B.R. Ambedkar must reach to the downtrodden SC/ST, Mool Nivasi, Adivasi communities. Pass? Pass? By implementing the Pune Pact, the reservation should be provided in private sector, judiciary, defense services and higher education. As per Pune Pact held between Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar, it was decided that the reservation should be provided to the SC/ST community in government services. During the previous years, the government has adopted the policy of privatization and not amended the constitution for making the provision of reservation in private sector. It is requested that by honoring the Pune Pact, the government should make the provision of reservation in private sector, judiciary, army and higher education to ensure the welfare of these communities. The privatization of government sector must be stopped. सहमत है आप लोग? सहमत है? तो हाथ तो सारे उठाया करो. चलिए, धन्यवाद. यूनियन जुडिशियल कमीशन
should be constituted at the pattern of Union Public Service Commission to provide adequate representation to the SC/ST communities in judicial services. A judicial commission should be constituted at the earliest at the pattern of Union Public Service Commission. सहमत हैं आप लोग? जुडिशरी में हमारे लोग होने चाहिए, उसके लिए कमीशन बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने इसमें पहल भी कर रखी है और हम लोग भी आज इस संविधान दिवस के मौके पर ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, एबेटेड रिजर्वेशन एक्ट, कुत्ता मर जाए बिल्ली मर जाए तो कानून है, हिरन मर जाए तो कानून है, SC/ST समाज के रिजर्वेशन के लिए कानून नहीं है। 2007 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब से हमारा महासंघ का डेलीगेशन मिला था तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था, हमने कहा साहब रिजर्वेशन एक्ट बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा रिजर्वेशन एक्ट नहीं है। मैंने नहीं है कि रिजर्वेशन कैसे चल रहा है, तो DOPT सेक्रेटरी खड़ा था, उसने कहा जी सर्कुलर्स के माध्यम से। तो उन्होंने इमीडिएट डायरेक्शन दिया कि इमीडिएट एक मीटिंग बुलाइए, पृथ्वीराज चौहान जो मिनिस्टर हैं DOPT के, महासंघ के लोगों को बुलाइए और रिजर्वेशन एक्ट आने वाला सेशन उसमें आपको प्रस्तुत करना है पार्लियामेंट। खुशी की बात है रिजर्वेशन एक्ट बना। तत्कालीन जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर बूटा सिंह जी, उनकी भी सहमति उसमें ली गई और उसके बाद में वो पास भी हो गया, संसद में पास भी हो गया, लेकिन वो अभी तक राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में आज तक आया नहीं और वो आज तक कानून नहीं बना। अरे बात समझ में आई? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है? ये बात सही है? तो कहना हमारा ये है कि जब कुत्ते के लिए कानून है, हिरन के लिए कानून है, तो इसके देख देश की चौथाई आबादी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे पर एक संकल्प हो कि एटलीस्ट इस समाज के लिए आरक्षण कानून तो बनना चाहिए। रिजर्वेशन जब तय हुआ था तो 22.5% तय हुआ था, तो हमारी आबादी थी कम। हम कह रहे हैं अब तो हमारी आबादी बहुत बढ़ गई। हमारी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। सहमत है आप लोग? इसके बाद में अंडर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल स्कूल हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1000 स्टूडेंट एट तहसील लेवल। देखिए ST प्लान, SC प्लान, कमीशन का काम है उसको मॉनिटर करना है। जो SC प्लान का पैसा है, जो ट्राइब सब प्लान का पैसा, कमीशन का मूल काम ही उसको मॉनिटर करना होता है। और SC प्लान का पैसा एज पर जो संविधान में प्रावधान है उसमें जितना बजट पेश करेगा वित्त मंत्री, उसमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें हमारे SC प्लान के लिए पैसा देने का प्रावधान है, लिखित में प्रावधान है। और उस पैसे को सिर्फ SC लोगों पे खर्च किया जाना चाहिए, ST लोगों पे खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन आज तक भी ये बात सही है, आप मानते हैं कि वो पैसा कहां खर्च होता है? ना आपको पता है ना हमको पता है। ये बात सही है गलत है? अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा। हमारा कहना ये, इस पैसे से माननीय सांपला साहब, अगर बच्चों के लिए 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल एक जिले में बना दिया जाए, एक जिले में 1000 बच्चों का एक स्कूल बना दिया जाए, उसमें उनका हॉस्टल बना दिया जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर ये स्कूल बन जाएं, तो मुझे लगता है ये हमारी सरकार के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। सही है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब should be given more powers, and the recommendation of the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes should be made mandatory. अभी कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या है? मैंडेटरी नहीं है। वो कहते हैं आप देख लीजिएगा, कर सकते तो करिए और नहीं कर सकते तो कमीशन को जवाब भेज दीजिए। ये प्रॉब्लम है। तो क्या कमीशन जो, अगर इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक आयोग है, वो जो बोलता है उसको पूरा देश मानता है, कलेक्टर भी मानता है, कमीशन भी मानता है, और हमारा भी संवैधानिक आयोग है। और हमारे आयोग के लिए DOPT ने एक लेटर जारी कर रखा है कि द recommendations of the commission are not mandatory. The department are advised to help the commission by implementing its recommendation. In case if it is not feasible, then you have to give the reply to the commission. ये सही है? अरे यही DOPT का है रूल। ये भैया हमारे कमीशन को ये पावर क्यों दे रखी जो आपने चुनाव आयोग को दे रखी है? जो भी कमीशन संवैधानिक और ये भी कमीशन संवैधानिक। तो संविधान दिवस के मौके पर हम अपने दोनों आयोगों के लिए ये मांग करेंगे
कि हमारे कमीशन की रिकमेंडेशंस को मैंडेटरी किया जाए। देश में जो भी रोजगार पैदा हो रहे हैं, अमेरिका में तो सिद्धांत है, देश में जो भी रोजगार पैदा हो रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डायवर्सिटी शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ द SC/ST कम्युनिटीज इन ऑल एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक एग्रीकल्चर ऑब्लिक बिजनेस ETC इन इंडिया। सहमत हो आप लोग? होना चाहिए। अमेरिका के प्रिंसिपल ऑफ डायवर्सिटी सिद्धांत के तहत हमारे यहां भी देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अरे सही है गलत है? चलिए, और एक सवाल यह, हमारे संत गुरु रविदास जी का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, और उस मंदिर की जो जमीन है वो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। किसने छीन ली? सुप्रीम कोर्ट ने छीन। तो हमारा कहना यह है कि सरकार के पास तो बहुत सारे प्रावधान हैं, हालांकि सरकार ने एक बड़ा दिल करते हुए हमको जमीन दी है मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन वो जगह बहुत कम है। जब गुरुद्वारों को इतनी जमीन दे रखी है, जब मस्जिदों को इतनी जगह दे रखी है, तो हमारे संत गुरु रविदास जी जो कि हमारे आदर्श हैं, भाई संत गुरु रविदास जी तो बाबा साहब से भी पहले आए ना दुनिया में, वो तो बाबा साहब के भी गुरु है नहीं है। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। तो उनका जो ये टेम्पल है कहां पर, तुगलकाबाद का, उसकी जो जमीन है वो वापस मंदिर को मिलनी चाहिए। सहमत हो आप लोग? और 10 लाख के आसपास अभी तक रोजगार खाली पड़े हैं आपके। मजे की बात यह है कि डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ घटती जा रही है, और बिना आपका बैकलॉग भरे आपका बैकलॉग पूरा होता जा रहा है, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ पे बैकलॉग निकालते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ऐसा है कि हमारी जो वैकेंसी थी 97 को आधार बना करके जब रोस्टर चेंज किया गया था, वो वैकेंसी 10 लाख हमारी आज तक नहीं भरी गई है। ये बात सही है गलत है? 97 में जब पोस्ट बेस रोस्टर लागू हुआ, वैकेंसी बेस रोस्टर हटाया गया, उस समय हमारा 10 लाख का शॉर्टफॉल था भारत में, हमारे समाज का। वो एक भी भरा नहीं गया, और हमारा शॉर्टफॉल और बैकलॉग दोनों ही पूरा हो गया। बात समझ में आई कुछ नहीं आई? तो क्या वो वैकेंसी हमारी पूरी नहीं होनी चाहिए? जोरदार ताली तो बजाओ। और देश में भाई साहब इतनी खाली लैंड पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? बैरल लैंड पड़ी हुई है। रेलवे ट्रैक के साथ कितनी जमीन पड़ी हुई है खाली। अगर ये सरकार एक दरियादली दिखाए और उस जमीन को उपजाऊ बना करके SC/ST समाज के लोगों में बांट दे, तो मुझे लगता है कि सरकार का एक अपने आप में इतिहास होगा, और सरकार हमेशा अपने इस काम के लिए याद की जाएगी। तो हमने कहा है द बैरल लैंड ऑफ द कंट्री शुड बी मेड फर्टाइल एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द SC/ST कम्युनिटीज। क्या आप लोग इसको पास करते हैं? सारी ये इन सब चीजों को पास करते हैं? हाथ उठा के पास करते हैं? चलिए, लास्ट में निवेदन है राष्ट्रपति से, ऑनरेबल मैडम, your good self is requested to take the remedial action on the above demands to ensure the upliftment of the welfare of SC/ST communities with regards All India Federation of SC/ST organizations। क्या प्रस्ताव पास है? और क्योंकि हमारे इस हाउस में राष्ट्रपति के नुमाइंदे कौन बैठे हुए हैं? माननीय विजय सापला साहब, जो संवैधानिक हेड हैं हमारे समाज के। तो ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन मैं चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन, वर्किंग चेयरमैन और चीफ पैटर्न तीनों ये पत्र जो है माननीय सांपला जी को दें, जो राष्ट्रपति जी के पास में इसको पहुंचाने का काम करेंगे। सबको दे